Hello students, here is the second video of lesson number 15. Name of the lesson is materials we use. In the first video, we have learned about the points toothpaste, detergents and how the detergents work in water for cleaning for cleaning the clothes and for cleaning our body. In that two main terms we have seen, that is surface activity and surfactant. Okay, till lather formation we have seen in the first video. Now in this video we start with the point natural detergent. Okay, here two natural detergents. Here pictures are shown. Two pictures. The first picture is of the Shikekai and the second picture is of the Rita. Okay, so let us see soap nut, that is Rita. This one is Rita, and soap pod, that is Shikekai, are the natural detergents in common use. They contain a chemical named saponin. Okay, this soap nut means Rita and Shikekai, they contain the chemical. Its name is saponin. Remember this, in fill in the blanks it may be asked. SAPONIN, saponin. So soap nut and soap pod do not have any harmful effect on human skin or on silk and woolen threads and cloth. Even these two, soap nut, that is Rita and Shikekai, even these two detergents were used for washing clothes also in the olden days. Nowadays no one does this, but in olden days it was used for washing hair, even the cleaning our skin, even for washing the clothes also. All type of clothes. Right. Next, moving to the next point. Next point is man-made detergent. These are natural detergent, means the detergents which are available naturally in our surrounding. Okay, only two examples are there, soap nut in Marathi Rita and soap pod means Shikekai. Then number two, next point, man-made detergents. Okay, what the meaning of man-made you must be remembering now. Okay, the substances which are formed by the chemical process of the natural substances are called as man-made substances. Okay, so man-made detergent means what? The detergents which are formed by the human being by the chemical process of some of the natural things, they are called as man-made detergents. Okay, the first one is soap. Soap is a man-made detergent which has been in use since ancient times. It is believed that soap was invented in the West. West means in Western countries. About 2000 years ago. In those days, soap was prepared using animal fat and wood ash. Today we come across a variety of soap. Okay, तो ये soap उसकी history बहुत पुरानी है, near about 2000 years before. Okay, but that time it was made in the Western countries. We say European countries. और European countries में ये soap बनाई गई थी. Okay, but in those days, whatever the technology is there today, that technology was not there. Even that knowledge was also not there. Okay, that time those people they used animal fat, जानवरों की चर्बी. Okay, and wood ash for preparing the soap. Okay, but now and even nowadays, if we see, then lot of variety of soaps are available in the market. Right now, we will see the types of soap. So hard soap is used for washing clothes. Okay, soap के दो प्रकार है. Number one is hard soap, which is used for washing clothes. कपड़े साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए जो सोप यूज की जाती है, that is called as hard soap. It is a sodium salt of fatty acids. Okay, उसका केमिकल कंटेंट क्या है? उसमें सोडियम सॉल्ट्स होते हैं. किसके साथ? ऑफ फैटी एसिड्स. ओके, सॉफ्ट सोप इज यूज फॉर बेदिंग. सॉफ्ट सोप जो होता है, जो हम लोग जो नहाने के लिए यूज करते हैं, वो उस सोप को बोलते हैं सॉफ्ट सोप. एंड हार्ड सोप कपड़े धोने के लिए. ये जो सॉफ्ट सोप होता है, इट इज अ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स. ओके, रिमेंबर दैट. हार्ड सोप में कौन से सॉल्ट्स होते हैं? सोडियम सॉल्ट्स. सॉफ्ट सोप में कौन से होते हैं? पोटेशियम सॉल्ट्स. ओके, फैटी एसिड्स तो है ही. ओके, इट डज नॉट कॉज इरिटेशन ऑफ द स्किन. ये जो सॉफ्ट सोप होता है जिसमें पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, इसकी वजह से अपने स्किन को इरिटेशन होता नहीं. ओके, अगर ये हार्ड सोप अगर हम लोग यूज करेंगे जिसमें सोडियम सॉल्ट्स है, then naturally it will create problems for the skin. Okay, then in the hard water,
of a well or a tube well. Hard water means what? The water in which the proportion of salts, dissolved salts is more. Okay, जिसमें salts का proportion ज्यादा होता है. Okay, नहीं तो एक खारा पानी बोलते हैं हम लोग. Okay, तो खारे पानी में कौन सा वेल का हो या ट्यूबवेल का हो, soap does not give lather but forms a scum. ओके जिस पानी में ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं, बहुत पानी बहुत सॉल्टी होता है, वो लैदर बनाता, लैदर यानी जो फेस बनना चाहिए कपड़े धोने से पहले, नहीं तो कपड़े धोते वक्त वो लैदर बनता नहीं है. ओके इंस्टेड ऑफ दैट इट फॉर्म्स अ स्कम. सिर्फ ऐसे एक व्हाइट व्हाइट कलर के ऐसे ये बनते हैं, नहीं तो ऐसे लैदर बनता नहीं है. एज अ रिजल्ट सोप लूजेस इट्स क्लीनिंग प्रॉपर्टी. ओके और ये स्कम की वजह से द सोप कैनॉट क्लीन द क्लोथ्स प्रॉपरली. ओके उसकी जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी वो काम नहीं करती वहां पर. राइट देन मूव टू सिंथेटिक डिटर्जेंट्स. ओके ये सिंथेटिक डिटर्जेंट आजकल मार्केट में बहुत चल रहे हैं. ओके और उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा है. नाउ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैव टेकन प्लेस ऑफ सोप. ओके क्या होता है उसमें? देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज डिटर्जेंट्स. The long structural units in the synthetic detergents are obtained from raw materials which are mainly fats or kerosene. Okay, इसमें क्या होता है? Okay, बहुत सारे मेथड से बनाने. अब अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग फॉर्मूलाज यूज कर रही है वो बनाने के लिए. रिन का अलग है, सर्फ का अलग है, टाइड का अलग है. ओके हर एक कंपनी का अपना अपना अलग फॉर्मूला है. ओके बट मोस्टली व्हाट इज कॉमन इन देम that they are obtained from the raw materials which are mainly fats or kerosene. Right? Detergents are obtained by subjecting these raw materials to a variety of chemical processes. Okay? ये डिटर्जेंट्स कैसे बनते हैं, नहीं तो कैसे बनाए जाते हैं? By subjecting all these raw materials to a variety of chemical process. Okay? इसके अंदर जो कुछ भी यूज किया जाता है दैट मटेरियल फर्स्ट इट गोज थ्रू केमिकल प्रोसेस. इसलिए तो इसको मैनमेड बोलते हैं ना. ओके केमिकल प्रोसेस. देन सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर यूज्ड इन मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स. इवन ये सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आजकल बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यानी जो स्किन की ट्रीटमेंट वगैरह चलती है उस पर बहुत सारी जगह पर यूज किया जाता है. Synthetic detergents can be used in hard water as well. Okay, you see some of the washing powders are there. They work very well in the salty water. Okay, अगर पानी में अगर salt ज्यादा भी है, then also the cleaning property of those detergents is very much better than comparing to others. Okay, all such detergents are called as synthetic detergents. Okay. ये जो बाकी के जो है मैनमेड डिटर्जेंट्स वो चलते नहीं है सॉल्टी वाटर में. राइट नेक्स्ट टू द राइट साइड व्हाट इज गिवन, लेट अस सी. एज पर द यूज ऑफ द डिटर्जेंट सपोर्टिंग एडिटिव्स सच एज परफ्यूम्स, डाइज, जर्मिसाइड्स, अल्कोहल, एंटी फोमिंग एजेंट्स, मॉइस्चराइजर्स, फाइन सैंड एक्सेट्रा आर मिक्स्ड विद डिफरेंट डिटर्जेंट्स टू गिव देम सर्टन यूजफुल properties. Okay, in the market if you see then many of the soaps and washing powders are available. Okay, हर एक सोप का सेंट स्मेल अलग है, हर एक सोप का कलर अलग है, हर एक वॉशिंग पाउडर का उसकी क्वालिटी अलग है, दिखने का वो पार्टिकल्स की साइज अलग है. मेनी थिंग्स आर देयर. ओके ये किसकी वजह से होता है? देन ऑल दिस थिंग्स आर देयर. क्या क्या होता है? तो अलग अलग परफ्यूम्स यूज करते हैं, अलग अलग डाइज यूज करते हैं, अलग अलग उसके अंदर जर्मिसाइड्स यूज करते हैं, इवन अल्कोहल भी उसके अंदर यूज करते हैं, एंटी फोमिंग एजेंट्स भी यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर यूज करते हैं. ओके बहुत सारे जो सोप्स होते हैं मोस्टली इन द विंटर सीजन विच आर यूज्ड. ओके उसके अंदर मॉइस्चराइजर होते हैं, कभी कभी फाइन सैंड भी यूज की जाती है. ओके फॉर व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर डन दैट सो दैट दे कैन क्रिएट देयर स्पेशलिटी फॉर अ स्पेसिफिक सीजन. Okay, so all such type of detergents are called as synthetic detergents. Now moving to next page, preparation of soap. सोप बनाई कैसी जाती है? ओके एक नॉर्मल सोप जो होती है वो कैसी बनाई जाती है तो उसकी प्रोसेस यहाँ पर दी है.
एक बनाने के लिए इवन दिस टाइप ऑफ सोप इवन यू कैन प्रिपेयर इट इन योर स्कूल लैबोरेटरी ऑल्सो. क्या क्या उसके लिए क्या मटेरियल चाहिए? 15 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, देन 60 ml कोकोनट ऑयल, then 15 gram of salt, then perfume, a glass rod, then beaker, tripod, wire gauze, burner, water, मोल्ड है ना, साचा बोलते हैं हम लोग उसको, यहाँ पर जो दिखाई दिया ये क्रीम कलर का, तो ये ओके, उसको शेप देने के लिए लास्ट में, ओके, मोल्ड एक्सेट्रा. ओके, इतने सारी चीजें अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग यू कैन प्रिपेयर द सोप. ओके, क्या प्रोसीजर है? टेक 60 ml कोकोनट ऑयल इन ए बीकर. 60 ml कोकोनट का ऑयल लेना है बीकर में, एंड उसमें क्या मिक्स करना है? डिजोल्व 15 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये अलग है. डिजोल्व 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 50 ml वाटर. ओके, ये बीकर में तो 60 ml अलग लेना है. ओके, दूसरे बीकर में क्या करना है? 15 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, उसके अंदर 50 ml वाटर. ओके, मिक्स द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन द ऑयल स्लोली. ओके, जब ये सोल्यूशन तो आप लोगों का तैयार हो जाएगा. ओके, 50 ml पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, ये 50 ml प्लस दिस 15, ये कितना हो गया? 65 ml का सोल्यूशन रहेगा. ये 65 ml का सोल्यूशन ये 60 ml कोकोनट ऑयल में मिक्स करना है स्लोली. ओके, दैट ऑल्सो वाइल स्टरिंग इट विथ अ ग्लास रॉड. ओके, ये एक बार मिक्स हो गया, देन हीट द मिक्सचर. वो उस मिक्सचर को हीट करना है एंड बॉइल इट फॉर 10 to 12 minutes. ओके, कर दिया, एंड स्टरिंग इट ऑल द टाइम. उसको ऑल द टाइम यू हैव टू कीप ऑन स्टरिंग, हिलाते रहना है. ओके, टेक केयर दैट द मिक्सचर डज नॉट बॉइल. उसको वो बॉइल नहीं होना चाहिए. ओके, ऑल द टाइम यू हैव टू कीप ऑन स्टरिंग, देन इट डजंट बॉइल. ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू? डिजोल्व 15 ग्राम सॉल्ट इन 200 ml वाटर. अब ये तीसरे बीकर में क्या लेना है? 15 ग्राम ऑफ सॉल्ट लेना है 200 ml वाटर में. ओके, ये एक बार ये तैयार हो गया, तो उसके बाद देन पोर दिस सोल्यूशन इनटू द अबव मिक्सचर. अब ये सोल्यूशन, ये जो तीसरा सोल्यूशन है, ये जो हीट का हम लोग हीटिंग कर रहे हैं, ओके, उसमें यू हैव टू पोर इट. ओके, एंड स्टर. द सोप फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन नाउ फ्लोट्स ऑन द वाटर. ओके, अब जब when you will mix this, when you will add this solution, this 215 ml, okay, solution in that, then the formation of the soap starts. Okay, soap कैसे बनती है? वो जो पूरा लिक्विड रहेगा उसके टॉप पर एक लेयर बनेगा. The soap formed by the chemical reaction now floats on the water. Okay, पानी पर उसका एक लेयर तैयार होगा. Okay, after some time it becomes thick. ओके, जब ये थिक लेयर तैयार हो जाएगा, देन सेपरेट द थिक सोप एंड ऐड परफ्यूम टू इट. उसके बाद वो ऊपर का जो थिक लेयर है वो निकाल लेना है. ओके, एंड इन दैट ऐड सम परफ्यूम. आपको जो अच्छा लगेगा परफ्यूम वो उसमें मिक्स करो. राइट, देन गिव द बार ऑफ सोप, शेप द बार ऑफ सोप यूजिंग द मोड. ये ऐसे यहाँ पर जो मोड दिखाई दिया है, ऐसे एक आधे मोड में जो साचा बोलते हैं हम लोग, उस साचे में डाल दो उसको. जिस मोड में डालोगे उसके जैसा शेप आ जाएगा. ओके, हम लोग देखते हैं अपनी जो बेदिंग सोप होती है, ओके, तो उसको अलग अलग प्रकार के शेप्स होते हैं. तो ये शेप हमें जैसा चाहिए वैसा दे सकते हैं. ओके, उस मोड में उसको रखना है, वो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स उसका इट टर्न्स इनटू सॉलिड आल्सो एंड इट टेक्स द शेप ऑफ दैट मोड. In the above process, fat and alkali combine to form salts of fatty acids. Okay, ये जो हम लोगों ने इससे पहले जो फैटी एसिड डिस्कस किए थे, ये फैटी एसिड कैसे तैयार होते हैं? ये फैट और अल्कली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और उससे क्या बनते हैं? फैटी एसिड्स. मीन्स केमिकली सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स. ओके, हमने इस प्रोसेस में कौन सा यूज किए थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, तो अपना जो सोप बना है वो दैट सोप वॉज ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, एंड वैसे अगर आप लोगों को पोटेशियम का चाहिए तो यू कैन इंस्टेड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यू कैन यूज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो. ओके, सो सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. बाकी कुछ नहीं. ये सोप का मतलब क्या है? या तो सोडियम नहीं तो पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स. राइट, आई होप टिल दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ.
Now let us move to the next point, that is cement. Okay, everyone is familiar with this cement. Okay, क्या होता है सीमेंट? पहले दो क्वेश्चन पूछे, व्हाट आर द मटेरियल्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या मटेरियल यूज किया जाता है? सैंड इज यूज, सीमेंट इज यूज, देन इवन वो स्टोन के जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ओके, आजकल वो ही ज्यादा यूज किया जाता है. ओके, स्मॉल, ओके, क्रशर में जो उसको ये किया जाता है वो ओके, लाइक दी ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन. देन विच ऑफ द हाउसेस सीन इन द पिक्चर्स हियर हैव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एंड व्हाई? ओके, यहां पर जो पिक्चर दी है ये है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर? नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी का बना है. ये है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर? नहीं है. ओके, ये यस इट इज, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सीमेंट. राइट, लेट अस मूव टू आवर पॉइंट. नाउ सीमेंट प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन कैसे बनता है ये अब हम लोग देखते हैं. सीमेंट इज एन इंपॉर्टेंट मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में सीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है. ओके, बिना सीमेंट का वो जो काम करते हैं वो अच्छा होता ही नहीं है. ओके, पक्का होता नहीं, अच्छा होता नहीं है, ये नहीं है, ये घर भी अच्छे हैं लेकिन पक्का होता है. देन शीट्स, देन ब्लॉक्स, pillars and pipes are made from concrete produced from cement. Okay, cement से क्या क्या बनता है? Many of the things are there. Now you must be seeing in your surrounding. Okay, even the benches, even the blocks, pillars, pipes, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं आजकल वो सीमेंट से बनाई जा रही है. ओके, सीमेंट यानी नॉट ओनली प्योर सीमेंट, तो सीमेंट में सैंड है, ओके, वो स्मॉल स्टोन्स जो होता है वो मिक्स किया जाता है. ऑल दीज थिंग्स आर मिक्स टुगेदर एंड इट फॉर्म्स अ कॉन्क्रीट. ओके, एंड दिस कॉन्क्रीट इज वेरी हार्ड व्हेन इट, जब वो मिक्सचर हम लोग किसी मोड में डालते हैं, ओके, जब वो सूखता है तो इतना पक्का होता है कि टूटता नहीं है जल्दी. ओके, क्या है सीमेंट? सीमेंट इज अ ड्राई, देन ग्रीनिश ग्रे पाउडर विथ फाइन particles. Okay, you must have seen the cement also. Okay, एक ड्राई होता है, पूरी पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका कलर कैसा होता है? ग्रीनिश ग्रे कलर होता है. ओके, एंड छोटे छोटे बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं. किससे बना है? इट इज मेड फ्रॉम सिलिका, दैट इज सैंड. वो सैंड से बना है. दैट सैंड कोई केमिकल, व्हाट इज द केमिकल नेम? सिलिका. ओके, और क्या होता है? एल्यूमिना. एल्यूमिना का मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड. देन lime, okay, then iron oxide and magnesia. All these contents are present in the cement. Okay, number 1 silica, number 2 alumina, number 3 lime, number 4 iron oxide, and number 4 magnesia. Okay, all these contents are there in the cement. Okay, next एक टाइप दिया है सीमेंट का. what is it? Portland cement is the most commonly used cement for construction work. It is made from raw material which consist of 60% lime. ओके, ये जो है पोर्टलैंड सीमेंट, ये ज्यादातर ये कंस्ट्रक्शन वर्क में ये यूज किया जाता है. ओके, उसके अंदर क्या क्या होता है? 60% उसके अंदर लाइम होता है. लाइम मीन्स हियर इट इज शोन द सेम लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड होता है. देन 25% सिलिका होता है. 60 + 25 85. ओके, उसके देन 5% एल्यूमिना होता है. 60% लाइम, 25% सिलिका, 5% एल्यूमिना. ओके, 90% हो गया. बाकी का जो 10% है वो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड एंड जिप्सम, दैट इज कैल्शियम सल्फेट. ओके, दिस पोर्टलैंड सीमेंट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द स्टोन क्वेरीड फ्रॉम द आइजल ऑफ पोर्टलैंड इन इंग्लैंड. ओके, ये पोर्टलैंड नाम उसको यहां से मिला है बिकॉज दिस पोर्टलैंड इज अ प्लेस इन इंग्लैंड, तो उससे उसको वो नाम मिला है पोर्टलैंड सीमेंट. ओके, विच हैज अ सिमिलर टेक्सचर. ओके, और उसका टेक्सचर एक जैसा होता है. ओके, कम ज्यादा नहीं होता कुछ. इन एंशियंट टाइम्स द रोमन्स हैड मेड सीमेंट एज वेल एज कॉन्क्रीट. पुराने दिनों में रोमन लोगों ने, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग थे रोमन्स. ओके, तो रोमन लोगों ने सीमेंट भी बनाया था. Okay, and even concrete also. They used to make aqueous cement by mixing volcanic ash in moistened lime. Okay, लेकिन उसके लिए उन्होंने रॉ मटेरियल क्या यूज किया था? एक्वियस सीमेंट
बाय मिक्सिंग वोल्केनिक ऐश, वो जो वोल्केनो जब उसका डिसरप्ट होता है, ओके, उससे जो मटेरियल निकलता है, उससे जो ऐश निकलती है, दैट ऐश वाज यूज्ड, ओके, एंड इन दैट सम मॉइस्चर यानी थोड़ा सा भीगा हुआ लाइम उसमें मिक्स किया जाता था, ओके, वो सबसे ज्यादा ड्यूरेबल था. इट वॉज अ वेरी ड्यूरेबल सीमेंट. With the decline of the Roman Empire, this art of making cement was also forgotten. Okay, लेकिन जैसे रोमन एम्पायर का डिक्लिनेशन हो गया, जैसे वो खत्म हो गया, उसके साथ वो नॉलेज भी उसके साथ गया. बट इन 1756 द ब्रिटिश इंजीनियर जॉन स्मिटन डेवलप्ड द मेथड ऑफ मेकिंग एक्वियस सीमेंट. Then later on in 1756, okay, near about 250 years before, this British engineer, Mr. John Smeaton, developed the method of aqueous cement. ये जो aqueous cement है यहाँ पर बताया गया है, उसकी मेथड उसने फिर से बना ली. ओके, व्हाट इज कंक्रीट? कंक्रीट में क्या होता है? कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय, ओके, जो हम घर के लिए जो कंक्रीट बनाते हैं तो वो किससे बनता है? बाय मिक्सिंग सीमेंट. ओके, नंबर 1 सीमेंट में आओ, ओके, देन नंबर 2 वाटर, नंबर 3 सैंड एंड ग्रेवल. ग्रेवल यानी मैंने जो इससे पहले बोला था, स्टोन के जो स्मॉलर साइज ऑफ स्टोन्स, ओके, वो जो यूज, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेवल. ओके, इन मराठी इट इज कॉल्ड एज खड़ी. ओके, तो सीमेंट, पानी, सैंड यानी वालू और ग्रेवल यानी खड़ी, ये सारा मटेरियल मिक्स करके जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्क्रीट. फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड लीक प्रूफ स्लैब, घर का जो घर के ऊपर जो हम जो छत बनाते हैं उसको बोलते हैं स्लैब. ओके, फॉर मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग एंड लीक प्रूफ सर्टन सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन कॉन्क्रीट. और उसमें और कुछ भी सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं. ओके, जैसे डॉक्टर फिक्सिट वगैरह कुछ लिक्विड्स ऐड करते हैं उसके अंदर. ओके, so here the lesson is over. Okay, on next page some two lines are given. Find out. Nowadays why are the roads made of concrete? ओके, कंक्रीट, क्योंकि ये टार का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है. ओके, व्हीकल स्लिप होना वगैरह ये, और वो गर्म भी होता है. वैसे कंक्रीट का रोड टिकता भी है अच्छा, ओके, और वो गर्म भी ज्यादा होता नहीं है. नंबर 2, व्हाट कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर? पानी में हार्डनेस कहां से आता है? वेन द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्ट्स, डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इन वाटर इज मोर, देन इट कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर. ओके, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है. ओके, मैंने एक्सप्लेन किया है. ओके, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज देयर. फिल एप्रोप्रिएट टर्म्स इन द ब्लैंक्स. ओके, हियर सम वर्ड्स आर गिवन. ओके, द फर्स्ट sentence is the substance that helps water to remove dirt from the surface of the material is called. तो इसमें से हम लोगों को चूज करना है. देन आंसर इज सोप. नंबर 2, फ्लोराइड इज यूज इन टूथपेस्ट टू प्रिवेंट. फ्लोराइड से क्या होता है? हमने वो वीडियो में देखा था. ओके, टूथ डिके वो कंट्रोल करता है. देन सोप इज अ सॉल्ट ऑफ. सोप किसका सॉल्ट है? ओके, इट इज द सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स and sodium hydroxide, right? Then number D, synthetic detergents can be used. Synthetic detergents can be used in hard water as well. Okay, synthetic detergent hard water यानी जिसमें salts का रेशियो ज्यादा है, ऐसे वाटर को क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर. ओके, तो उसमें वो सिंथेटिक डिटर्जेंट अच्छा चलता है. देन नंबर E, फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेस, तो वहां पर कौन सा सीमेंट यूज किया जाता है? व्हाइट सीमेंट. हियर इट इज यूज व्हाइट सीमेंट. व्हाइट सीमेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीमेंट. राइट, देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर. राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द यूज ऑफ द डिटर्जेंट हेल्प टू क्लीन सॉइल्ड क्लोथ्स? ओके, तो हम लोग इसका आंसर, थोड़ा सा आंसर तो बहुत बड़ा है. मॉलिक्यूल ऑफ द डिटर्जेंट होल्ड्स ऑन टू द वाटर मॉलिक्यूल एट वन एंड एंड एन ऑयल मॉलिक्यूल एट द अदर एंड, जो मैंने वो वीडियो में एक्सप्लेन किया था. ओके, तो उसकी वजह से ये सोप पाउडर कैन क्लीन द डिटर्जेंट कैन क्लीन द सॉइल्ड क्लोथ्स. ओके, यानी उसके साथ वो सॉइल का पार्टिकल भी निकाल लेता है, और वो कुछ ऑयल के दाग वगैरह है तो वो भी निकाल लेता है.
Okay, so go through all these questions. Okay, simple it is. Okay, then question number 2. Question number 2 में कितना h तक है. Okay, then question number 3. What are the similarities and differences? And then explain why and give reasons. ऐसा ही है. Okay, simply आप लोग कर सकते हो. थोड़ा सा लेसन एक बार फिर से पढ़ो. Okay, you can do it. Okay, चलो, here the lesson gets over. Thank you. I will come back with the new lesson, that is lesson number 16. Okay, thank you.